Dear students, Assalamu alaikum and welcome. Hope you are fine. Very good. Well, our today's topic is Alchi Monastery. Dear students, Alchi is a little village in Ladakh. There's a very old monastery there. People come to Alchi from all over the world to see this monastery. Sonam is a little girl who sees many different people in her little village. Where are they? What are these people doing there? She wonders. Though they speak many different languages, some of them know bits of English. Sonam enjoys talking to them. When I grow up, I will be a tourist guide and take these people around, she thinks. Sonam wants to find out more about the monastery that these people are so excited about. Well, dear students, अलची एक छोटा सा गांव है जो लद्दाख में वाक़ा है और यहाँ पे एक कदीम मोनेस्ट्री है। एक कदीम मोनेस्ट्री है यहाँ पे अलची में, जो कि लद्दाख का एक गांव है। तो इस मोनेस्ट्री को अलची के नाम से जाना जाता है और इसको देखने के लिए तमाम दुनिया से दूर दूर के मुल्कों से लोग टूरिस्ट्स देखने के लिए आते हैं। ये टूरिस्ट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम सोनम है और सोनम ये देख के हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि ये लोग मुख्तलिफ इतनी सारी बोलियां बोलते हैं, इतनी ज़ुबानें बोलते हैं, तो ये यहाँ क्यों आते हैं। तो फिर वो उसको पता चलता है कि ये यहाँ पे सयाह लोग आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं इस मोनेस्ट्री को देखने के लिए और वो अपने जहन में ये तय कर लेती है कि बड़ी होकर वो भी एक टूरिस्ट गाइड बनेगी और फिर इन लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करेगी और इनको लद्दाख के बारे में और मोनेस्ट्रीज के बारे में जानकारी देगी। So, well, dear students, now this little girl Sonam wants to find out more about the monastery that these people are so excited about. Okay, now the curiosity increases in Sonam's mind. The curiosity increases about knowing more and more about the monastery. Therefore, she asks her grandfather, Maimele, tell me about the monastery, tell me everything. Now she asks her grandfather about the monastery and she wants to know everything about it. And her grandfather says, I don't know everything, but I will tell you what I know. He smiles. So with a smile, her grandfather assures her that he will tell her everything he knows about the monastery. Why do so many people come to see it? Who made it? Sonam asked. Now Sonam puts forth a question to her grandfather and she asks, she wants to know, why do so many people come to see the monastery there? Who made this monastery? These were the questions that Sonam wants to know answers of. Well, many people made it. Many people, her grandfather says, many people made this monastery. Some people made the walls and some people painted them. कुछ लोगों ने इसकी दीवारें बनाई और कुछ लोगों ने इन दीवारों पर रंग किया। बहुत सारे लोगों ने मिलके इस मोनेस्ट्री को बनाया और कुछ लोगों ने इसकी दीवारें बनाई, कुछ दूसरे लोगों ने इस पे फिर पेंट किया। The person who got it made was Rinchen Zangpo.
तो जो इसका असली जो मीमार था, जिसने इसको बनाया या बनवाया, वो शख्स, उसका नाम था रिनचिन ज़ांगपो। तो रिनचिन ज़ांगपो जो था, रिनचिन ज़ांगपो, उसने इस अलची मोनेस्ट्री को बनवाया। When people wrote about Buddhism in Sanskrit, he translated and wrote those things in Tibetan. So he was good at both Sanskrit and Tibetan. People say that he got 108 monasteries made. Now this is amazing. 108 monasteries. Alchi was one of them. Alchi was one of the monasteries he has made. प्यारे बच्चों, ये जो रिनचिन ज़ोंगपा था, ये बुद्धिज़्म के बारे में जब पुराने ज़माने में किताबें लिखी गई थी तो वो संस्कृत में लिखी गई थी। तो रिनचिन ज़ोंगपा ने उन किताबों को तिब्बतियन ज़बान में ट्रांसलेट किया, तर्जुमा किया। और लोग कहते हैं कि उसने वो दोनों ज़बानें जानता था, संस्कृत भी जानता था और तिब्बतियन भी जानता था। और इस आदमी ने लगभग 108 मोनेस्ट्रीज बनाई हैं, जिनमें से एक अलची भी है। द पेंटिंग्स हियर आर स्पेशल। इस अलची में जो पेंटिंग्स हैं, अलची गुम्पा में जो पेंटिंग्स हैं, अलची मोनेस्ट्री में जो गुम्पा, इसको लद्दाखी में गुम्पा बोलते हैं इस मोनेस्ट्री को, तो इसमें जो पेंटिंग्स हैं वहाँ पे, वो स्पेशल किस्म की पेंटिंग्स हैं। दे आर वेरी स्पेशल। अलची इज़ नॉट मेड ओनली इन द तिब्बतियन स्टाइल। Renchen Zongpo had lived in Kashmir to study Buddhism. When he came back to Ladakh, he brought many Kashmiri artists with him. The monastery at Alchi was made by both Kashmiri and Tibetan artists. So there is a beautiful sharing of their art styles, which has made Alchi famous. तो आपको समझ आ गई बात कि ये जो रिनचिन ज़ोंगपा था, ये कश्मीर आया था, यहाँ पे इसने बुद्धिज़्म की स्टडी की। फिर यहाँ से जब ये वापस चला गया तो इसने अपने साथ बहुत से कश्मीरी आर्टिस्ट्स भी ले लिए। तो वहाँ पे जब उसने वो मोनेस्ट्री बनाई, तो इस मोनेस्ट्री को बनाने में कश्मीरी आर्टिस्टों ने भी हिस्सा लिया और तिब्बतियन आर्टिस्टों ने भी इसमें काम किया। तो दोनों जो आर्ट हैं, तिब्बतियन आर्ट एज वेल एज कश्मीरी आर्ट, तो सॉरी, ये दोनों आर्ट इसमें नुमायां तौर पे वो दिखाई देते हैं। कश्मीरी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ तिब्बतियन एंड कश्मीरी आर्ट्स। ये दोनों आर्ट वहाँ पे इसमें दिखाई देते हैं। तो ये इस तरह से एक स्पेशल किस्म का एक वहाँ पे एक मोनूमेंट बन गया है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग ऑफ आर्ट्स है। आर्ट स्टाइल्स इसमें जो हैं वो शेयर किए गए हैं। कुछ इसमें कश्मीरी स्टाइल भी है और कुछ इसमें तिब्बतियन स्टाइल भी है। तो इस वजह से जो ये अलची का जो इसकी ये अलची मोनेस्ट्री है, ये सारी दुनिया में फेमस है, मशहूर है। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अलची मोनेस्ट्री हैज़ गॉट 3 फ्लोर्स। ये जो अलची की मोनेस्ट्री है, इसका जो बड़ा हिस्सा है उसके 3 फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर्स। इट्स बिल्ट इन तिब्बतियन स्टाइल विद मड एंड स्टोन। तो ये मड और स्टोन का बनाया हुआ है तिब्बतियन स्टाइल में। द ब्यूटिफुल कवरिंग ऑन द पिलर्स, स्टैचूज ऑफ वुड एंड क्ले एंड वॉल पेंटिंग्स आर मेड बाय कश्मीरी आर्टिस्ट्स। इस पे जो ब्यूटिफुल कार्विंग है, जो पिलर्स पे की गई है कार्विंग, नक्श निगार जो इसके पिलर्स पे किए गए हैं, और जो स्टैचूज ऑफ वुड, वहाँ पे लकड़ी की स्टैचूज हैं और मिट्टी की, लकड़ी और मिट्टी की स्टैचूज वहाँ पे हैं। तो और उस पे वहाँ जो वाल हैं, जो दीवारें हैं, उन दीवारों पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं। दे आर मेड बाय कश्मीरी आर्टिस्ट्स। सी दिस स्टैचू ऑफ अवलोकितेश्वरा। अवलोकितेश्वरा की ये स्टैचू आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अवलोकितेश्वरा की स्टैचू है। इट्स विद अ स्पेशल पेंटेड धोती ऑन इट। Some historians say
The dhoti has a painting of a very old map of Kashmir. Now this is amazing that some historians claim that there is a very old map of Kashmir on this dhoti. Historians can find clues about many things in the paintings at Alchi, like by looking at the clothes people are wearing in different paintings. वहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं उन पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो क्लोथिंग है, उनके जो कपड़े हैं, उनकी जो पोशाक है वो डिफरेंट किस्म की है. Some kings are seen to be wearing big long dresses like in Iran. उसमें कुछ किंग्स की पेंटिंग्स हैं, बादशाहों की पेंटिंग्स हैं जो लॉन्ग ड्रेसेस पहने हुए हैं जैसे कि ईरान के ड्रेसेस होते हैं. तो उस तरह के ड्रेसेस उनमें दिखाए गए हैं. Around this time people traveled between Iran and Kashmir and shared many things like dresses, food, music, books, etc. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पुराना ज़माना था उस वक्त कश्मीर और ईरान के दरमियान बहुत सी चीज़ें जो थी वो शेयर होती थी, क्योंकि लोग इधर उधर ट्रैवल करते थे. ईरान से लोग यहाँ आते थे कश्मीर और कश्मीर से ईरान जाते थे. तो इस तरह से जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ करता था उस वजह से लोगों के ड्रेसेस, लोगों का फूड, खाना पीना और यहाँ का जो म्यूज़िक है और बुक्स, किताबें वगैरह, तो ये सब जो है इनमें हम देख सकते हैं कि इन पे ईरान की जो सकाफ़त है, ईरान की जो तहज़ीब है, वहाँ का जो तमद्दुन है उसकी एक छाप है इस पर, उसका एक नक्श है इस पर. तो इसी वजह से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी हैं जिनके ड्रेसेस जो हैं हमें वो ईरानी ड्रेसेस लगते हैं. तो ये जो सोनम है आपकी तरह की जो छोटी बच्ची है वो ये सब जानकर या सब देखकर वो हैरान हो जाती है. Sonam is amazed to see all these things. Thousands of years back, so many people were coming to our village, she thinks. She thought she must study more history of that time, of Ladakh, Kashmir, Tibet, Iran, and many other parts of the world, and many other places, and also about old paintings and carvings. There is so much to know. She must become a good guide who can share all these wonderful stories with tourists from all over the world. So dear students, this was about Alchi. Now a textual question for you. What do you know about Alchi Monastery? Dear students, what do you know about Alchi Monastery? Yes? Can you answer to this question? Yes, it's very simple. Alchi is a small village. Please write down, I repeat. Alchi is a small village in Ladakh and there's a very beautiful monastery over there. It is known as Alchi Monastery. People from all over the world come over here to see this monastery. There was a person, Rin Chen Zongpo. There was a person, Rin Chen Zongpo, who made it, who constructed or made the Alchi Monastery. The major part of the Alchi Monastery has got 3 floors. It's built in Tibetan style with stone and mud. The beautiful carving on the pillars, statues of wood and clay, and wall paintings are made by Kashmiri artists. All these things are made by Kashmiri artists. So that's about the Alchi Monastery. So with this I take your leave. Thank you very much. Goodbye. Take care and stay safe.